Wish you all a good day. Friends, today, a lot of truth, a lot of reality gets hidden under the carpet. The truth is suppressed, reality is hidden from the people who should know, and therefore it is eating up systems, families, society, institutions like a cancer. Today we need a courage like that of Jesus, who was courageous, who spoke the truth, who was brave, bold, and told the truth to the face. To the authorities of his time, whether they were scribes, whether they were Pharisees, he would not refrain from speaking out the truth. And what ultimately the result was crucifixion. But then, was crucifixion the end? It actually brought about a movement that resulted into an international movement, globalization, through which Christianity came into being. Nations accepted it, the ideology, the philosophy of Jesus Christ, so that the world could be free of injustice, for things that were harmful, and create a world, a society which is reformed, a society where the value of Jesus Christ are followed, where a brotherhood reduces the amount of violence that prevailed in earlier times, where people began to imbibe what Jesus taught and show it in their behavior by loving God with heart, soul, mind, and strength, and also not forgetting their neighbors and to love them with their, as though they were loving their own selves. And this brought about a result where a society compared to what it was at the time of Jesus emerged. And that is what is the responsibility of you and me. Let's stop hiding the truth. Let's stop sugarcoating our words where it is required. Let's have the Jesus-like courage to speak out the truth, to tell people to their face. As Jesus exposed a lot of things, revealed reality, and then let us remember, for every revolution, martyrdom is required. But martyrdom doesn't close the chapter, it opens a new chapter where structural change, mind setup changes, and a new society is born. God bless you, and I pray that you would become one of them. Amen. आप सबको जय मसीह की और एक शुभ दिन जब हम इस जीवन के पर्व को मनाते हैं। एक हकीकत है कि बहुत सी सच्चाई, बहुत सी हकीकतें आज मानव जाति से छुपी हैं, जो वास्तव में एक कैंसर की तरह हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारी इंस्टीट्यूशंस को, हमारी कलीसियाओं को खा रही हैं। किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो मसीह वाली हिम्मत रखे, जो फरीसियों और जो स्क्राइब्स थे उनके खिलाफ खड़े होकर उसने तो उनके मुंह पर बोला। नतीजा ये था कि उसको सूली पर चढ़ा दिया। और आज ये कीमत हर बदलाव लाने वाले को देनी है कि वो शहीद होगा। लेकिन क्या शहीदी या प्रभु यीशु का क्रूस पर चढ़ जाना अंत था? मैं सोचता हूँ उसने तो एक नई समाज को जन्म दिया, जहाँ लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच में तब्दीली आई। जो हिंसा थी घट गई, जो ये ग्रेजुअल बदलाव आया, आज हम देखते हैं कि एक नया संसार है, नई मानसिकता है। किसकी तुलना में? जो प्रभु यीशु के समय में समाज था, जो रोमन जो साम्राज्य या रोमन जो अथॉरिटीज़ थी,
जो सूली पर चढ़ा देना कितना क्रूअल, एक तरह का कठोर जो सज़ा है, आज रद्द हो गई। आज बड़े जो ह्यूमन राइट्स और अन्य बातों के बारे में हम सुन रहे हैं, ये सब प्रभु यीशु के आने के बाद और उनकी इस कुर्बानी के बाद हुआ है। आज मैं सोचता हूँ ये मसीह यीशु वाली एक जज्बा हर नौजवान को, हम में से प्रत्येक को चाहिए कि सच्चाई को मुंह पर बोलना सीखे। उसका नतीजा तो तय है कि लोग खुश नहीं होंगे, लोग हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन इस क्रांति के बाद जो फ़ायदा ये है कि मानसिकता में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो माइंडसेट है, वो उसके अंदर तब्दीली आएगी। क्योंकि हम पुराने समय से अब देख लें, जैसे जैसे इस तरह के क्रांतिकारी पैदा हुए, उनकी उद्देश्य ये नहीं था कि वो कुछ इस प्रकार की समाज में आग लगाएं, लेकिन रिफॉर्मर्स थे, वो चाहते थे कि जो समय उनसे पहले था, आने वाला समाज एक ऐसा पैदा हो जिसकी नई सोच हो, जिससे संसार और सुंदर बने। और मैं सोचता हूँ ये परमेश्वर के भेजे हुए लोग थे, और इसलिए आज मेरे और आपकी एक नई जिम्मेवारी होती है कि हम भी इस संसार के अंदर जो सच्चाई, जो हमारे समाज को, जो हमारी हकीकत को छुपाई हुई है और जो एक कैंसर की तरह खा रही है हमारी इंस्टीट्यूशंस को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को, कोई तो खड़ा हो, कोई तो मुंह पर बोले। क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि हम सच्चाई को लेपन पोतन करके मिठास से भरे शब्दों में बोलते हैं, असर होता नहीं, लेकिन ये कहते हैं मैंने तो बोला था। आज मैं और आप एक तरह का प्रण दें कि हम इस सच्चाई के लिए खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मार्ग, सत्य, जीवन है, और ये सत्य तभी प्रकट होगा जब हम सत्य को बोलेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।